তোলা মুশকিল বন্ধ করে কি বলেছিল কমিউনিস্টকে कम्युनिस्ट के उखाड़ के फेंका कि नहीं, फेंका कि नहीं, फेंका कि नहीं फेंका। आप 23 में माननीय अमित भाई शाहजी এসেছেন আমাদের মধ্যে। 23 আমাদের কিসের নির্বাচন? ত্রিপুরার ভবিষ্যতের নির্বাচন। 23 কিসের নির্বাচন? 23 কিসের নির্বাচন? ভবিষ্যৎ কে নির্বাচন করবে? নরেন্দ্র ভাই মোদী। কে নির্বাচন করবে? কে নির্বাচন করবে? নির্বাচন করবে। বন্ধুরা, আমি এটাই চাইছি যে 2018 নির্বাচন ত্রিপুরার মুক্তির নির্বাচন ছিল। অমিত ভাই শাহজি ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন। উনি সেদিন ত্রিপুরাকে মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। আর 23 নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি ভবিষ্যতে নির্মাণ করবে। অমিত ভাই শাহ, নরেন্দ্র ভাই মোদী এবং জেপি নাড্ডাজির নেতৃত্বে আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার এই জনসমুদ্রের মধ্যে যারাই এসেছেন কার্যকর্তারা আজ এখান থেকে যখন যাবেন আর সেই মন্ত্রে 23 মন্ত্রে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নির্মাণ করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার একবার ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান আলোচনা রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মানিক সাহা মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুঙ্কা হাম্বাই। আজকের যে জনবিশ্বাস, যে যাত্রা, যে র্যালি, সেই র্যালিতে মঞ্চে উপস্থিত আছেন সবার প্রিয়, সবার আদরণীয় যশস্বী গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয় কাছে ঘরে ঘরে গিয়েছিলাম। সেই আশীর্বাদের বিশ্বাস নিয়ে আজকে আমরা সেই বিশ্বাস যাত্রা এখানে আমরা করছি। বন্ধুগণ, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু একটা কথাই বলবো যে এই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে গুড গভর্নেন্সের যে স্কেমের সরকার আমরা এতদিন ধরে দেখেছি, উনার মার্গদর্শনে আমাদের ত্রিপুরাতেও আমরা সেই স্ক্যাম ছাড়া যে সরকার, যে গুড গভর্নেন্সের সরকার, সেই সরকার আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আমাদের এই জনবিশ্বাসের যে যাত্রা শুরু হচ্ছে, 60-এর মধ্যে 60-এর আমরা যে আমাদের সভাপতি যে প্রদেশের আমরা নিশ্চিত আবার ত্রিপুরাতে আমার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে বিজেপি সরকার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য, এবং ফগের কারণে আমাদের দেরি হয়ে গেছে, এর জন্য আমাদের ক্ষমা প্রার্থী। সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এখন আমরা যার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছি, যার বক্তব্য শোনার জন্য, যাকে দেখার জন্য, এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন ভারতের मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्या
हो गया उत्तर त्रिपुरा, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। बहुत समय के बाद मैं उत्तर त्रिपुरा में आया हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मेरे मित्र श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, बहन प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय मंत्री जी, सांसद रेवती त्रिपुरा जी, संदीप पात्रा, हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आगे आओ जरा मंच पर, सबको प्रणाम करो, ताली बजाइए संदीप भाई के पास लिए। हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण, और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव-गांव से आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड से आ रहा था। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े, उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर मानिक साह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए मैं जाने वाला हूं। और आज जब मैं यहां हूं, माणिक्य वंश के राजाओं और महान महाराजा वीर विक्रम को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़कर रखा। गुरुवर टागोर माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे, और यही त्रिपुरा की धरती ने एक बड़ा नगीना पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला है श्री बर्मन देवी का काम किया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को
साधुवाद बधाई देना चाहता हूं कि यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है, जन विश्वास यात्रा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारों के काम के आधार पर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी? 11 लोग उपस्थित थे। मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था, चलो पलटाई। और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बनी होगी जिसका अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद 200 से ज्यादा जनसभाएं, 100 से ज्यादा पदयात्राएं और 50 रोड शो ये यात्रा कवर कर हमने आपके विश्वास के अनुरूप जो काम किया है वो बताए। माताओं, भाइयों, बहनों, 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव था। लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने यहां शासन किया मगर त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास जाओ, रोजगारी लेनी है कैडर के पास जाओ, राशन लेना है कैडर के पास जाओ, थाने में केस दर्ज कराना है तो कैडर के पास जाओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं, कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है? भाई बताइए, दिखता है? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का। और ये चुनाव 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है, वो नींव पर एक समृद्ध त्रिपुरा की इमारत बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर तो पहुंच ही गया है, हर घर में शौचालय तो पहुंच ही गया है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हर एक के लिए अस्पताल की व्यवस्था। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, आज बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बालेन्द्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है। मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। मित्रों, ये जो डबल इंजन सरकार हमारी चली, उससे
जनसमूह को मित्रों, का जवाब सवाल है। मोदी जी ने जल जंगल और पार्टी की सरकार ने पीने का पानी पहुंचाने की सुविधा